welcome to Adamus World School YouTube channel. As you all know, we are running the Impact program where we are trying to revise various topics related to maths, physics, chemistry and biology for your upcoming JEE and NEET exam, also for your board exams. What I'm going to do is, I'm going to talk about a very interesting topic, that is genetics, and give you all a brief overview of two of the most important topics under genetics, that is monohybrid cross and the other is dihybrid cross. So before we actually start talking about the details of those crosses, let's first understand or know who this man is. Yes, all of you must be knowing. So he is the great scientist Gregor Johann Mendel. So just like a lot of us, ever since our childhood we have aspired to be teachers. So even Mendel wanted to be a teacher. But then that aspiration of his could not come out to be true. So what Mendel did was, he basically became a monk in an Austrian monastery. Now in that monastery, Mendel took to gardening, right? तो क्या करते थे वो? Different kind of pea plants जो थे, that is, I'll just write the name, garden pea. Okay, garden pea, whose scientific name is Pisum sativum. So what Mendel would do is, he would do different kinds of experiments with these garden pea, okay? And in the turnout of those experiments, he got very interesting observations. So it is said that what Mendel actually discovered made him a teacher of teachers. Okay, so while talking about Mendelian genetics, I'll write his name, that I didn't, Gregor Mendel. Okay, so the genetics that we study in the school level, that's mainly Mendelian genetics. That is the genetics as described by Gregor Mendel. So chalo, what we are going to do is, the first thing that let us understand is this word that we have, genetics. This word, that is genetics. From where is this word coming basically? देखो ना यहाँ पे कि gene से आ रहा है. So I hope all of us understand, right? Say this is your DNA. So a portion of the DNA, that is known as gene. ठीक है? Say this is one gene. For instance, I write gene 1. Say this is another gene. This is gene 2. Okay, and each of these genes can lead to the formation or production of various kinds of proteins. So from genes, what we get is proteins. Okay, say protein 1 from here, protein 2 from here. So what Mendel tried to do, that he wanted to tell people that what you see from outside of the pea plants, say the pea ka color of the pod, the color of the seed, then मान लो where is the flower present, एकदम top में या in between the axial position में. So he said that all of these come from the genes. The genes decide that how the external observable character is. So Mendel's experiment में ना क्या हुआ, he took 7 different characters with which he performed the experiments. Okay, चलो. So quickly, let us see what are the 7 characters that he worked with. The 7 characters that he worked with, first let's see the pod color, then pod shape, okay, then है आपका seed color, okay, and we have seed shape. Then क्या आता है? Then you have flower color. Flower position, and what you have is plant height.
ठीक है. Now what Mendel basically considered was that all of these characters that you have, they can have two alternate traits. Now what do I mean when I say trait? Say for example, लास्ट से चालू करते हैं, प्लांट हाइट के बारे में बात करो तो अ पी प्लांट कैन आइदर बी टॉल या तो पी प्लांट क्या हो सकता है, वो ड्वार्फ हो सकता है. ओके, टॉक अबाउट द फ्लावर पोजिशन. The flowers can either be in the axial position or they can be in the terminal position. फ्लावर कलर आपका या तो हो सकता है पर्पल या तो हो सकता है वाइट. सीड शेप आपका या तो हो सकता है राउंड या तो हो सकता है रिंकल्ड. ठीक है, सीड कलर आपका या तो हो सकता है येलो या तो हो सकता है ग्रीन. पॉट शेप भी वैसे, ईदर इट कैन बी फुल पॉड और इट कैन बी अ कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉड. सिमिलरली पॉट कलर में क्या हो सकता है, या तो वो येलो हो सकता है या तो वो ग्रीन हो सकता है ना. तो each of these characters can have two alternate forms. तो alternate forms of a character को हम क्या कहेंगे, इसे हम कहते हैं alleles. तो make sure you know this word very well. क्या है वो allele? What is the meaning of allele? Allele means the alternate forms of a character. I mean specifically अगर हम लोग बोले तो alternate forms of a, we'll say gene. Alternate forms of a gene and a trait is the alternate forms of the character. इसे हम लोग कहेंगे trait. Each of these are individual traits. तो I guess this much is clear. Now what we'll do is, let us have a basic understanding that what was these rules that Mendel basically found out. So he tried to cross between, we'll take an example of a tall pea plant crossing with a dwarf pea plant. Okay, so these are the parents. तो पेरेंट्स में क्या हो गया, टॉल पी प्लांट आ गया एंड डॉर्फ पी प्लांट आ गया. टॉल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यू कैन रिप्रेजेंट टॉल बाय कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी. तो यहाँ पे क्या लेते हैं ना, कैपिटल टी लेते हैं एंड देन डॉर्फ को क्या लेंगे, स्मॉल टी. तो आपका जब ये कैपिटल की कंडीशन है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है होमोजाइगस. आप लोग को पता है ना होमो का मतलब क्या होता है, होमो मतलब सेम. तो ये हो गया आपका होमोजाइगस. एक ही वर्ड है, मैंने 2 लाइन में लिख दिया. यहाँ पे आपका स्मॉल टी, इससे भी तुम कहोगे होमोजाइगस. लेकिन ये दोनों में अंतर क्या है अभी देखते हैं. चलो कैसे देखेंगे, सेम कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. So what did Mendel do? He tried to cross between them. क्रॉस को हम कैसे कॉपी में समझेंगे अच्छे से, दैट इज बाय यूजिंग अ पनेट स्क्वायर. पनेट स्क्वायर क्या है ना, दिस इज अ काइंड ऑफ स्क्वायर. ऐसे एक तुम स्क्वायर बनाओगे, ठीक है, जिसमें व्हाट आर यू राइटिंग, कैपिटल टी एक साइड लिखोगे, स्मॉल टी एक साइड लिखोगे. हो गया सिंपल. एंड देन इन बिटवीन हाउ आर यू फिलिंग द बॉक्सेस को तुम फिल करोगे विद द थिंग्स से कैपिटल टी स्मॉल टी. यहाँ से भी इंटरसेक्शन कैपिटल टी स्मॉल टी, ऐसे हो गया. तो दिस इज योर फर्स्ट जनरेशन. ये क्या हो गया, दिस इज द ऑफस्प्रिंग ऑफ द फर्स्ट जनरेशन बेटा, जिसे हम कहेंगे F1 जनरेशन. तो F1 जनरेशन में आपका जो सारे के सारे ऑफस्प्रिंग्स हैं, हाउ आर दे आर कैपिटल टी. कैपिटल टी will also give us tall plants and कैपिटल टी स्मॉल टी आपका अलग अलग है. यहाँ पे क्या था, कैपिटल टी बोथ आर सेम, स्मॉल टी बोथ आर सेम. तो होमो अभी अलग हो गया तो क्या आएगा, तुम सबको पता है अलग होने से हेटेरो कहा जाता है. सो दिस इज योर हेटेरोजाइगस. अब देखो
दो टर्म्स हम लोग को अच्छे से पता होना चाहिए। क्या है वो दो टर्म्स? दैट इज कौन है डोमिनेंट, कौन है रिसेसिव। मान लो कि टू फ्रेंड्स आर देयर, ठीक है। नाउ व्हेन आई गो टू टॉक टू द टू फ्रेंड्स एंड आई आस्क देम, चलो बच्चों तुम लोग का प्रॉब्लम क्या है बता दो। से वन गर्ल इज ओनली टॉकिंग, शी इज लाइक मैम ये है ये है ये है, द अदर पर्सन इज एकदम सेलो टेप ऑन द माउथ। तो मैं क्या बोलूँगी कि ये जो पेयर है, दो अलग अलग आदमी हैं, इनमें से जो बहुत बोल रहे हैं वो है आपका डोमिनेंट, एंड जो कुछ नहीं बोल रहे चुपचाप बैठे हैं वो है आपका रिसेसिव। मतलब बाहर से आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो बहुत चपर चपर कर रही है इसी का डोमिनेंस आ रहा है। यू कैन सी द एक्सटर्नल कैरेक्टर ऑफ दैट पर्सन ओनली। तो यहाँ पे भी देखो आप कैपिटल टी का ही देख पा रहे हो कि टॉल है, ये जो बेचारा स्मॉल टी डॉर्फ वाला है इसका तो कोई ऑब्जर्वेशन हम लोग को मिल ही नहीं रहा है ना। तो इसीलिए हम क्या कहते, विल से दिस टॉल वन इज द डोमिनेंट ट्रेट। ओके, टॉल को कहोगे डोमिनेंट ट्रेट, एंड ये जो तुम्हारा ड्वार्फ था, डॉर्फ को क्या कहोगे? रिसेसिव ट्रेट। समझ में आ गया एकदम अच्छे से? तो कैपिटल टी हो गया आपका डोमिनेंट, स्मॉल टी हो गया आपका रिसेसिव। तो सिंपल सा क्या कहोगे कि कैपिटल टी होमोजाइगस डोमिनेंट, स्मॉल टी हो गया आपका होमोजाइगस रिसेसिव, एंड ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी है ये हो गया आपका हेटेरोजाइगस। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन वाला सबके सब क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी, दैट इज ऑल आर टॉल। अब ना मेंडल ने क्या किया, अब मेंडल को लगा कि चलो मैं F2 जनरेशन को देखती हूँ क्या होता है। तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी जो इन्हें मिला, यू क्रॉस इट विथ इट सेल्फ, सेल्फिंग कहते हैं हम इसे, सेल्फिंग। दैट मीन्स F1 को ही F1 के साथ क्रॉस करा लो। अब क्या मिलेगा? बना लो फिर से पनेट स्क्वायर, आता है तुम लोगों को अभी बनाना। पनेट स्क्वायर बनाने से कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे भी कैपिटल टी स्मॉल टी, भर लो पनेट स्क्वायर, है कि नहीं? ऐसा आ रहा है तो ये क्या है, यहाँ से तुम्हें क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा कि ये जो आपका कैपिटल टी गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये सब क्या है? एटलीस्ट वन कैपिटल टी, एटलीस्ट वन डोमिनेंट है। तो ये सब क्या होगा? टॉल प्लांट्स होगा। सो कैपिटल टी स्मॉल टी, ऑल आर योर टॉल प्लांट्स, है ना। एंड देन आपका बस ये जो स्मॉल टी है दैट इज योर ड्वार्फ प्लांट। मतलब मैं एक चुपचाप इंसान के साथ अगर वैसे ही एक चुपचाप इंसान को बैठा दूं, एकदम सेम सिमिलर, ओनली देन तुम्हें सुनने को मिलेगा कि वो लोग क्या कह रहे। लेकिन एक बहुत बोलने वाले इंसान के साथ एक चुपचाप इंसान को बैठा दोगे तो क्या होगा? बस बोलने वाले इंसान का ही आवाज आएगा। राइट, गेटिंग इट क्लियरली? सो फ्रॉम हियर हम लोग दो रेशियो निकालेंगे। क्या है बेटा दो रेशियो? क्या निकालेंगे देखते हैं, चलो। अच्छा, इसे कहोगे F2 जनरेशन, हाँ, सेकेंड जनरेशन। दो रेशियो निकालेंगे। क्या है दो रेशियो? एक है आपका जीनोटाइपिक रेशियो, एक है आपका फिनोटाइपिक रेशियो। तो ये जो वर्ड आया ना, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप का क्या मतलब है? जीनोटाइप मतलब जीन्स को लेके लेना देना। तो यहाँ पे कितना कैसा कॉम्बिनेशन है? कैपिटल टी आपका एक है, कैपिटल टी स्मॉल टी आपका दो है, स्मॉल टी आपका एक है ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जीनोटाइपिक रेशियो कैपिटल टी इज टू कैपिटल टी स्मॉल टी इज टू स्मॉल टी इक्वल्स टू 1:2:1। ये हुआ एकदम क्लियर, 1:2:1। देन फिनोटाइपिक रेशियो आपका क्या हुआ कि ये तीन जो है, तीन ही आपका टॉल है, राइट। तो आप फिनोटाइपिक रेशियो निकालोगे, टॉल इज टू ड्वार्फ, कितना खुद ही बता दोगे। टॉल है आपका 3,
ड्वार्फ है, बस एक आया। तो द डिफरेंस इज दैट जीनोटाइपिक रेशियो आपका 1:2:1, फिनोटाइपिक आपका 3:1। तो आई गेस ये वाला जो क्रॉस हम लोगों ने देखा, क्या नाम है इसका? दिस इज नोन एज द मोनो हाइब्रिड। मोनो क्यों कहेंगे बाबा? क्योंकि बस एक ही कैरेक्टर को लेके हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, जस्ट वन कैरेक्टर। ऑल्टरनेट ट्रेट्स हम लोग का ओनली वन पेयर है, राइट, टॉल एंड ड्वार्फ। तो ये हो गया आपका एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, और भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे डाई हाइब्रिड क्रॉस आता है, जैसे मेंडेलियन पैटर्न से थोड़ा सा डेविएशन भी क्या क्या होते हैं। तो बहुत सारे वैसे कॉन्सेप्ट्स हैं। आज के लिए फ़िलहाल हम लोगों ने अच्छे से समझा कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है। अभी एक प्रॉब्लम सब मैं आप लोगों को दूंगी, जल्दी से तुम लोग करोगे एंड देन हम लोग ये लेक्चर कंक्लूड करेंगे। चलो जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन करके मुझे दिखाओ कि इफ यू क्रॉस अ पी प्लांट विथ yellow seeds, okay, pea plant with yellow seeds is crossed with a pea plant with green seeds, तो आपका F1 F2 क्या आएगा? यहाँ पे मैं आपको हिंट में क्या दूंगी? हिंट में मैं आपको बता दूंगी कि जो आपका येलो है दैट इज द डोमिनेंट एंड ग्रीन जो है बेटा वो है आपका रिसेसिव। ठीक है, एंड मैं और भी एक हिंट डालूंगी यहाँ पे कि बोथ ऑफ दीज आर होमोजाइगस, बोथ आर होमोजाइगस। ठीक है, तो चलो अब ये मुझे करके जल्दी जल्दी दिखा दो। हो पा रहे या नहीं हो पा रहे बता दो। एक काम करो, यहीं पे वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लो एंड देन फिर से रिप्ले करो एंड देन लुक इनटू द सॉल्यूशन दैट आई एम मेकिंग एंड टैली करो कि आपका मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है एंड आंसर कमेंट करके बताओ, यस मैम मैच्ड, नो मैम नॉट मैच्ड। एंड अभी जो गैप मिल रहा है ना, यहीं पे फटाक से सब्सक्राइब कर दो एडमस वर्ल्ड स्कूल का चैनल को। ठीक है, चलो तो आप पॉज करके कर लो देन वापस आना। ओके लेट्स चेक क्या है सोल्यूशन। येलो सीड्स जो आपका है, मैं येलो सीड्स को ले रही हूँ कैपिटल वाई, मैं ग्रीन सीड्स को ले रही हूँ यहाँ पे स्मॉल वाई। ठीक है बेटा, पेरेंट्स चला गया P। F1 जनरेशन क्या जाएगा? F1 कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सो ऑल ऑफ देम विल बी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, है ना। तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई आपका क्या रहेगा? दीज आर ऑल येलो सीडेड प्लांट्स, येलो सीड्स, यस, एंड दीज आर योर होमोजाइगस। F2 में तुम क्या करोगे? कैपिटल वाई स्मॉल वाई को ही कैपिटल वाई स्मॉल वाई से क्रॉस करा दोगे, तो फिर आपको क्या मिलेगा? कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये मिलेगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई 2, देन स्मॉल वाई, सही ना। तो इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पे? द आंसर दैट यू विल गेट इज आपका जेनोटाइपिक रेशियो। Genotypic ratio is capital Y is to capital Y small y आएगा 1:2:1 एंड आपका जो phenotypic ratio होगा डियर, phenotypic ratio वो होगा आपका yellow seed is to green seeds, that will be 3:1, क्योंकि ये जो है ये सब येलो है आपका एंड बस ये वाला जो है ये आपका ग्रीन है। ओके, तो आई गेस आप सबको अच्छे से पता चल गया। अब हम लोग का जो अगले सब वीडियोस आएंगे वहाँ पे हम फिर से और डिटेल्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेनेटिक्स का टॉपिक कवर करेंगे। फिलहाल फॉर टुडे दैट्स इट।
अच्छे से पढ़ाई करो, जो भी डाउट्स आ रहे, PYQs जो भी हो, कमेंट करके हम लोग को बताओ, कोई भी सब्जेक्ट के लिए वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू. Once again, like, share and subscribe to our channel Aramas World School. Keep following the impact program and we hope कि हम लोग बहुत अच्छे से सब मिल के प्रेपरेशन करके एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से देंगे. Thank you. Bye bye.